Now we shall be talking about the Lewis concept of the acid and base. ठीक है? Lewis concept एक और simple सा concept है, which says that acid is a substance which has a capacity to accept the electron pair, while the base is a substance which has a capacity to donate the electron pair. ठीक है? तो चलिए, let's write the definition for a Lewis acid. देखिए, Lewis acid, a substance having a capacity to accept an electron pair to form a covalent bond. To form a covalent bond with the release of energy. With the release of energy. Full stop. A Lewis acid. A Lewis acid must have a low energy empty orbital. A Lewis acid must have a low energy empty orbital. That is, the orbital which can be used to accept an electron pair and forms a covalent bond with the release of energy. ठीक है? अब देखो यहां पर मैंने स्पेसिफिकली बोला लो एनर्जी एम्प्टी ऑर्बिटल. उसका रीजन है कि अगर मैं सिर्फ ये बोल देता एम्प्टी ऑर्बिटल, तो एम्प्टी ऑर्बिटल तो हर एटम में होते हैं, कोई भी हो, कोई भी स्पीशी हो, एम्प्टी ऑर्बिटल सब में है. इनफैक्ट एवरी स्पीशी हैज इनफाइनाइट एम्प्टी ऑर्बिटल. पर वो एम्प्टी ऑर्बिटल इतनी ज्यादा एनर्जी के होते हैं कि अगर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब हो जाती है. तो ऐसी जितनी भी स्पीशी है जहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने पर एनर्जी रिलीज हो, दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स. ठीक है? एनर्जी रिलीज इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. अगर एनर्जी रिलीज नहीं है तो वह लुईस एसिड नहीं है. ठीक है? इज इट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्क्राइब समथिंग कॉल्ड लुईस बेसिस. ठीक है? लिख लीजिए, Lewis basis. A species which has a donatable electron pair. A species which has a donatable electron pair. That is, an electron pair. That is, an electron pair which it can donate or contribute. An electron pair which it can donate or contribute to form a covalent bond, with the release of energy is termed a Lewis base. ठीक है? This donatable electron pair is in general
a lone pair or the electron pair present in the pi bond. Okay? Clear? I hope you remember what's a lone pair. Lone pair is a non-bonded electron pair in the valence shell. ठीक है? Just electron pair से काम नहीं चलेगा. ये नहीं कि electron pair है. Lone pair is the non-bonded electron pair in the valence shell. ठीक है? An electron pair is two electrons present in the same orbital with opposite spin. Two unpaired electron does not mean a lone pair. Am I clear with that? And further, यहाँ पे एक word बोला गया donatable electron pair. अब अगर देखा जाए donatable electron pair, अगर मैं सिर्फ electron pair बोल देता तो सोडियम आयन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ना. Other than hydrogen atom, every species has at least one electron pair. ठीक है? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर बोलने से काम नहीं चलेगा. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेबल होना चाहिए, मतलब कि कोई ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जहां पे इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो, तब तो हम उसको लुईस बेस बोलेंगे, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे. तो अगेन इट इज एक्सपेरिमेंट बेस्ड, इट इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड, इट इज नॉट जस्ट काइंड ऑफ कि हाँ है तो है. क्लियर? ठीक है? इज इट ओके? Whenever there is a reaction between a Lewis acid and a Lewis base, then a covalent bond is formed, और फिर हम उनको एसिड, लुईस एसिड और लुईस बेस बोल सकते हैं. आप ये भी कह सकते हो लुईस बेस डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ लुईस एसिड. इज इट क्लियर? अब हमारे पास इस तरीके से काफी सारे एग्जांपल हैं. जैसे हमारे पास एक स्पीशी है जिसे हम बोलते हैं NH3. अब जब हम NH3 की बात करते हैं तो NH3 के पास नाइट्रोजन के पास ही इलेक्ट्रॉन पेयर है. Now NH3 has a capacity to donate this electron pair to variety of substances. जैसे कि it can interact with BF3. अगर हम BF3 की बात करते हैं तो boron is sp2 hybridized. It has an empty p orbital. Now this BF3 has a capacity to accept the electron pair from ammonia to give the compound NH3BF3, and this kind of a bond is formed. Okay? The bond formed by the contribution of the electron pair from one atom, which is shared by two, is termed as a coordinate bond. तो यहां पर this is what we call as a coordinate bond. It is a covalent bond. The only speciality, I won't say difference, only speciality is that the electron pair is being contributed from one atom. Okay? Is it okay? You know the definition of coordinate bond? Have you written it? नहीं लिखे? फिर लिख लो. A covalent bond formed by contribution of the electron pair from one atom which is shared by two is known as coordinate bond. Okay? The Lewis acid base bond is generally the coordinate bond. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया जा सकता है. हमारे पास ये NH3 है, हम इसको H+ से रिएक्ट करवा देते हैं to become NH4+. ये भी एक Lewis acid base रिएक्शन है. ठीक है? Is it clear?
Are we clear about Lewis acid and bases? Any confusions here? ठीक है, चलिए, ये तो हमने लुइस एसिड और बेस कैरेक्टर की बात की, लुइस एसिड बेस क्या होते हैं। और अब हम एक और टॉपिक पर चलेंगे जिसे बोला जाता है ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। ठीक है, अगर हम सीधी सीधी नॉर्मल भाषा की बात करें तो हम इसको सेल्फी बोल सकते हैं। सेल्फी, सेल्फी क्या होता है? खुद की खींचना। वैसे इसका सही हिंदी ट्रांसलेशन है स्वचित्र। स्वचित्र, खुद का चित्र बनाना या खुद का चित्र खींचना। ठीक है, अब वैसे आप जो मर्जी बनाते रहे सेल्फी का मतलब, तो ये ऑटो आयोनाइजेशन इज ऑल्सो सेल्फी, सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन। ठीक है, द आयोनाइजेशन और द रिएक्शन इन विच a particular substance forms ions by itself is termed as auto-ionization. It may involve dissociation. ठीक है, but that is what we term as auto-ionization. Clear? देखिए, a reaction in which a substance forms ions by itself is termed auto-ionization. Is termed auto-ionization. ठीक है, ऑटो आयोनाइजेशन के कई एग्जांपल्स हैं। अब उनमें से एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है N2O4 एंड आई टेक N2O4 लिक्विड। जब मैं N2O4 लिक्विड लेता हूं, देन इन दैट केस आई फाइंड दैट आई हैव एन इक्विलिब्रियम इन विच आई हैव NO पॉजिटिव along with NO3 नेगेटिव। तो यहां पर हमारे पास this is an example of auto ionization. Further, I could have even the example of N2O5 forming NO2 positive along with NO3 negative. This also is an example of auto ionization. Another example could be like I have NH3 plus NH3 to form NH4 plus plus NH2 minus. ये भी example auto ionization का है। ठीक है, then we could have a more famous example, H2O plus H2O forming H3O plus plus OH minus. ठीक है, ये सारे के सारे ऑटो आयोनाइजेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक बात का ख्याल रखना, ये जितने भी ऑटो आयोनाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। हर किसी में जो बॉन्ड टूट रहा है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है एज कंपेयर टू द बॉन्ड विच इज बीइंग फॉर्म और मे बी नॉट फॉर्म। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट वाला एग्जांपल की, तो इसमें सिर्फ एक बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन ही नहीं रहा कोई। सेकेंड के अंदर भी सिर्फ बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन नहीं रहा। तीसरे के अंदर बॉन्ड बन भी रहा है, बॉन्ड टूट भी रहा है, लेकिन बॉन्ड टूटने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। इस वाले एग्जांपल में भी बॉन्ड टूटने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, बॉन्ड बनने में कम रिलीज होगी। ठीक है, इनफैक्ट दिस रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन में एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी एब्सॉर्ब। इज इट क्लियर? So these all are endothermic reaction and therefore they are not very favorable. अगर हम liquid species, इनमें से कोई भी liquid species लेते हैं, then in that case this species is not going to have too much ions here. ठीक है? These all are covalent species.
and therefore they do not favorably dissociate into ions when molten. ये सारे इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. Is it clear? ठीक है. The most important reaction that we are now going to discuss any further is this reaction. ये वाला reaction है जिसको हम आगे further discuss करेंगे. That is auto ionization of water. ठीक है, ये लिख लिया आपने सारे. तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं. We are going to talk about this auto ionization of water. अब auto ionization of water के अंदर मैंने लिखा H2O liquid plus H2O liquid in equilibrium with H3O plus aqueous plus OH minus aqueous. अब एक बात समझो, H3O plus एग्जिस्ट नहीं करता. जो स्पीशी एग्जिस्ट करती है वो इससे काफी बड़ी होती है. H3O plus भी एग्जिस्ट नहीं करता, H plus भी एग्जिस्ट नहीं करता. जब मुझे पता है ना तो H plus एग्जिस्ट करता है ना H3O plus एग्जिस्ट करता है, तो मैं H3O plus जबरदस्ती क्यों लिखूं? Why can't I simply write H plus? मुझे भी पता है कि H plus is surrounded by water, therefore a big species is formed. H3O plus also is surrounded by water, so that a big species is formed. So why not write H plus with a water around it? उससे एक फायदा होगा मुझे, और वो फायदा ये होगा कि मुझे यहाँ पर H2O दो बार नहीं लिखना पड़ेगा. I am going to write H2O liquid dissociated to give H plus aqueous plus OH minus aqueous. Now this is a simple representation of the auto ionization of water. ठीक है, अब मेरे पास एक equilibrium आ गया. The moment I get the equilibrium, I would like to get an equilibrium constant. I would like to put some words, some measurement to it. ठीक है, अब यहां पर देखो, अब इस इक्वेशन को जैसे मैंने लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक स्पीशी है. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्पीशी है तो आई कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ डिसोसिएशन हियर. डिसोसिएशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है लेफ्ट हैंड साइड मस्ट हैव ओनली वन स्पीशी. फाइन, एग्री, एक स्पीशी है तो आई कैन से वन में से अल्फा गया, इसका अल्फा बना, इसका अल्फा बना. ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन, and then obviously I can write K. देखो फिर से कह रहा हूं, आपको जब भी कोई क्वेश्चन करना है, फॉलो द स्टेप्स, डोंट सिंपली जंप ओवर इट, बिकॉज यू डोंट मेक मिस्टेक्स, यू मेक सिली मिस्टेक्स which in my language are idiotic mistakes. You make a mistake for the sake of making a mistake. You should not make those mistakes. इसलिए कह रहा हूं स्टेप्स फॉलो करो, आराम से होंगे. ठीक है, छोटी छोटी चीज होती है. अब यहां पे K की वैल्यू, you will write first the equilibrium expression. Equilibrium expression says the product of the concentration of product divided by the product of the concentration of reactant raised to power their respective stoichiometric coefficient. तो यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट इज H plus, OH minus, the reactant is H2O. ठीक है, अब इन कंसंट्रेशन को हम सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्सप्रेशन के अंदर, एंड व्हेन वी डू इट, इट्स गोइंग टू बी C alpha multiplied by C alpha divided by C1 minus alpha. ठीक है, सीधा सीधा कैंसिल करते हैं, वी गेट C alpha square upon 1 minus alpha. ये वही घिसा पीटा है, जब भी हम एक ये कांस्टेंट ये यूज करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज करते हैं, हमेशा हमें यही एक्सप्रेशन मिलता है. ठीक है, PCl5 में भी यही मिला था. अब यहां पर एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, एंड दैट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन टेल्स अस कि ये जो वाटर का डिसोसिएशन है ये बहुत ही कम है. इनफैक्ट इट्स वैल्यू इज समथिंग लाइक 10⁻⁻⁹. तो 10⁻⁹ की अगर हम बात करें तो दिस इज 1 in a billion. 1 in a billion है ये. अगर मैं यहां पे 1 में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आई विल बी राइटिंग 0.9999999. ठीक है,
कैलकुलेशन करने में कितना फर्क पड़ेगा अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करूं? आई डोंट थिंक सो एनीथिंग. So won't it be very nice if I could just write it as 1? When the value of alpha, that is degree of dissociation, is extremely small in comparison to 1, we neglect it in comparison to 1. ठीक है? तो यहां पर हम इसे सिर्फ 1 लिख देते हैं. हाँ? ध्यान से सुनो. Where the alpha is very small in comparison to 1. Alpha square का comparison किसके साथ है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल है. You have 10,000 rupees to spend. ठीक है? जब 10,000 रुपए का नोट की गड्डी आप अपनी जेब में रखते हो तो उसमें 2-4 सिक्के हैं, 1 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का है. तुम्हें इरिटेट करता है. तुम उस सिक्के को निकालते हो, तुम अपने पर्स में डाल देते हो या कोई भिखारी मिलता है उसको दे देते हो. ठीक है? बस मेरे पास 10,000 रुपए हैं स्पेंड करने के लिए. 5 रुपए का सिक्का इरिटेट कर रहा था, निकाला और किसी को दे दिया. ओके. ऑन द अदर हैंड, मॉम ने आपको सुबह 5 रुपए का सिक्का दिया और बोला बेटा ये तेरा इंस्टीट्यूट जाने का बस का किराया है. अब कोई भिखारी तुम्हारे पास आया, भैया कुछ पैसे. जवाब क्या दोगे? अबे मैं खुद सुबह मांग के लाया हूं, तेरे को क्या दे दूं? 5 रुपए अभी भी 5 रुपए है, लेकिन उसकी कीमत अब बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 5 रुपए ही तुम्हारे पास है. कंपेयर किससे कर रहे हो? ठीक है? एक व्यक्ति है, लेट्स से बिल गेट्स है. अब बिल गेट्स के अकाउंट में पैसे इतने पड़े हैं कि अगर उससे कुछ मांगने जाओगे तो आई डोंट सपोज व्हाइल राइटिंग अ चेक वो 10,000 से कम का चेक भी लिख सकता है. उसको लगेगा यार उससे कम का चेक क्या लिखूं, मजा ही नहीं आएगा. कहां तुम 10,000 के कंपैरिजन में 5 रुपए नेग्लेक्ट कर रहे थे और कहां बिल गेट्स के लिए 10,000 रुपए ही नेग्लिजिबल है. तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंट ये है वो किसके कंपैरिजन में है. तो इन कंपैरिजन टू 1 अल्फा इज नेग्लिजिबल, बट अल्फा स्क्वायर ऑल्दो इज स्मॉलर देन अल्फा, मच स्मॉलर देन अल्फा, स्टिल इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड बिकॉज दिस इज द ओनली वैल्यू. कंपैरिजन ही नहीं है. ठीक है? We can neglect a value, or we can omit the value, or we can make it inadmissible, insignificant only in addition and subtraction. You cannot do so in multiplication and division. Is it clear? Logic clear? So, इस alpha को हम neglect कर देते हैं and we get the value as हाँ प्योर लिक्विड है. अच्छा आप वो चाहते हो कि H2O को प्योर लिक्विड ले लें? चलो ठीक है, फिलहाल हम उसको प्योर लिक्विड ना लेकर उसको एज अ सब्सटेंस लेके चल रहे थे. सॉल्यूशन भी तो वही है ना, ऐसे डिराइव कर लेते फिर आपकी बात भी मान लेंगे. नो कंफ्यूजन. तो यहां पे अगर हम इस k की बात करते हैं तो हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √k/c. Is it clear? Quick confusion? Concentration of H plus will be equal to under root, or rather it should be equal to C alpha, which would be equal to under root K multiplied by C. ठीक है? कोई प्रॉब्लम? यहां तक ठीक है? तो ये एक मैंने जनरल डेरिवेशन लिया. ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर.
ठीक है, या आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बोल दो। पर जो उन्होंने पॉइंट रेज किया था कि वाटर इज अ प्योर लिक्विड, वी मस्ट नॉट टेक इट्स कंसंट्रेशन इन द सिस्टम, और उसका रीजन ये है कि वी शुड नॉट टेक द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज दैट वाटर इज नॉट ओनली द प्योर लिक्विड, इट इज द सॉल्वेंट एज वेल, and it is present in a huge concentration, and its concentration remains a constant throughout the system, throughout the reaction. अगर ऐसा है तो हमें इस इक्वेशन को दोबारा लिखना चाहिए। ये सारा आपने कॉपी कर लिया? ओके, तो इस इक्वेशन को हमें दोबारा लिखना चाहिए। I should write K is equal to the concentration of H plus into concentration of OH minus divided by the concentration of H2O. Now it is said that concentration of H2O remains a constant throughout the reaction. So what I should do is, I should multiply this K with H2O, and when I do that, it becomes K into H2O becomes equal to the concentration of H plus into concentration of OH minus. This expression is a constant, no problem, is the product of the concentration of ions formed on autoionization of water. So it is the product of the concentration of ions of water. Therefore, this is termed as ionic product of water. ठीक है? This is ionic product of water written as Kw. ठीक है? Definition लिखिए. Ionic product of water. It is the product of the concentration. It is product of the concentration of the ions formed due to autoionization of water. Due to autoionization of water. ठीक है? So it is the concentration of H plus multiplied by the concentration of OH minus. Okay. Now remember, this Kw is an equilibrium constant. Hence, it follows all the properties of an equilibrium constant. जिस जिस चीज से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट होता है, उस चीज से ये Kw भी अफेक्ट होता है, और जिस चीज से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट नहीं होता, उससे ये Kw भी अफेक्ट नहीं होता। इज इट ओके? राइट? Kw is an equilibrium constant. Hence, its property are the same as an equilibrium constant. ठीक है? तो प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। फर्स्ट वन, it is not affected by the individual concentration of H plus or OH minus. H plus or OH minus. Full stop. अगली प्रॉपर्टी लिखिए। It is affected by temperature. It is affected by temperature. Full stop. Dissociation of water is an endothermic process. Full stop. In fact,
it is the reverse of neutralization reaction. In fact, it is the reverse of neutralization reaction, and an energy of 57.2 kilojoules per mole is absorbed. 57.2 kilojoules per mole is absorbed. Full stop. The increase in temperature increases the equilibrium constant, of an endothermic reaction. Hence, Kw increases with temperature. Kw increases with temperature. Full stop. The observed value of Kw at 298 Kelvin. Observed value of Kw at 298 Kelvin is 10 raised to power minus 14. So Kw is equal to 10 raised to power minus 14 at 298 Kelvin. याद रखना, टेम्परेचर बदल गया तो ये वैल्यू बदल जाएगी. वो अलग बात है कि जहां कहीं भी टेम्परेचर लिखा हुआ नहीं होता हम उसको 298 केल्विन ले लेते हैं, और जहां लिखा होता है वो भी 298 केल्विन होता है. सिंपल. पर फिर भी वी नीड टू बी केयरफुल. अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है तो ये 10⁻⁻14 नहीं है. फाइन. ओके, तो अब हम अगली बात करते हैं. यहां एक बात समझ में आ गई है कि वी आर गोइंग टू डील विद वेरी स्मॉल वैल्यूज. बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, और जब कभी भी हम बहुत छोटी या बहुत बड़ी वैल्यूज से डील कर रहे होते हैं, वी ऑलवेज टेक द लॉग्स. ठीक है, हम लॉग ले लेते हैं. तो इसमें हमने इसका लॉग ले लेना है. ठीक है, log becomes log Kw is equal to log of the concentration of H plus the log of the concentration of OH minus. ठीक है, जस्ट एक लाइन बता देता हूं. log का मतलब होता है a number which when raised to power 10 की पावर बनाया जाएगा तो we will get a given number. ठीक है, ऐसा हिलना नहीं चाहता ना. ठीक है, तो दैट इज द 10. तो यहां पर हमने इसका लॉग ले लिया. अब इंपॉर्टेंट बात यह कि जितनी भी वैल्यूज हमारे सामने आ रही हैं ये सारी नेगेटिव है. दिस विल बी -14, और यहां पे हम प्योर वाटर की बात करें तो H+ और OH- बराबर होगा, तो ये 10⁻⁻7 होगा, ये 10⁻⁻7 होगा. So what we do is we multiply the entire equation by -1. We get minus log Kw is equal to minus log the concentration of H plus minus log the concentration of OH minus. ठीक है. अब यहां इसका माइनस लॉग लेकर हमने 10 की जो पावर आ रही थी उसको जबरदस्ती पॉजिटिव बना दिया. ठीक है, तो यहां पर माइनस लॉग Kw वुड मीन पॉजिटिव पावर ऑफ Kw. माइनस लॉग H+ वुड मीन पॉजिटिव पावर ऑफ H+ कंसंट्रेशन.
दिस वुड मीन पॉजिटिव पावर ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस पॉजिटिव पावर को हम लिख देते हैं पॉजिटिव पावर ऑफ KW। P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, KW को हमने पावर में डाल दिया, तो इसको पढ़ोगे तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव पावर ऑफ KW। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं पॉजिटिव पावर ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। अब पंगा ये है, केमिस्ट्री की एक स्टेटमेंट है, बहुत बार बता चुका हूं, वो ये कि अगर मुझे पता है कि जो मैं बताने वाला हूं तुम्हें पहले से पता है तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और ये केमिस्ट्री वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि जो बंदा पढ़ा रहा होता है उसको तो आता है और उसको लगता है भाई इतना सिंपल है, तुम्हें भी आता होगा, वो बताता नहीं है और तुम्हें पता ही नहीं चलता कभी। तो इसलिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या मैं सोच रहा हूं तुम्हें पता है, मुझे पता है, मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे पता है और तुम्हें भी पता है कि भाई पावर में कंसंट्रेशन ही होगा और कंसंट्रेशन H प्लस का ही होगा, H तो होगा नहीं। तो मैं कंसंट्रेशन वाले ब्रैकेट क्यों लगाऊं, ब्रैकेट टेल्स मी द कंसंट्रेशन, क्यों लगाऊं, नहीं लगाता। और जब मुझे पता है कि H प्लस ही होता है तो प्लस भी क्यों लगाऊं, सिर्फ H ना लगाऊं। हम बोलते हैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है, रसायन, पर ये केमिस्ट्री वाले इतने नीरस होते हैं कि रसायन में से रस गायब कर देते हैं, सिर्फ आयन छोड़ते हैं। तो केमिस्ट्री रसायन की जगह आयन विज्ञान होकर रह जाता है। तब यहां पर भी रस हटाओ, जितने भी इंटरेस्टिंग ब्यूटीफाइंग पार्ट है हटाओ, क्या करोगे, लिखो P और उसके ऊपर लिख दो H। तो दिस बिकम्स पॉजिटिव पावर ऑफ H। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से लिख दो P OH, द पॉजिटिव पावर ऑफ OH। अब हुआ ये कि जब ये साइंटिस्ट ये सारे के सारे काम कर रहे थे, तब जो प्रिंटिंग होती थी उस प्रिंटिंग में ये पावर्स और सबस्क्रिप्ट डालना जरा टेढ़ा काम हुआ करता था। ठीक है, तो प्रिंटिंग के ड्रॉबैक की वजह से ये लिखा गया PKW और ये बन गया PH, ये बन गया POH। एक्चुअली ये सही है, बट प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट से ये सही होगा। अपीयरेंस और फर्क वो होता है जिससे फर्क पड़े, और फर्क वहां पड़ता है जहां पे उसे आप फर्क माने। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा तो कोई फर्क है ही नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर। क्योंकि अगर आपको कोई बोलता है दिस इज पॉजिटिव पावर ऑफ H, तो आप बोलोगे सर लिखा तो PH है, आप बोल रहे हो पॉजिटिव पावर ऑफ H है, ये भी फर्क हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम्हें फर्क नहीं लगता तो फर्क नहीं है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द इक्वेशन व्हिच वी टॉक अबाउट। ठीक है, नाउ आई थिंक वी कैन डिफाइन व्हाट इज pH. pH is the negative log of hydronium ion concentration in a solution. Is it clear? लिखिए pH. pH is the negative log. pH is the negative log of hydronium ion concentration. Okay. Similarly, we can say POH. It is the negative log of hydroxide ion concentration in a solution. POH is the negative log of the hydroxide ion concentration in a solution. ठीक है, pH plus POH is equal to pKW.
ठीक है, pH plus POH is equal to pKw, which is equal to 14 at 298 Kelvin. ठीक है, pKw is equal to 14 at 298 Kelvin. ठीक है, अब यहां पर अगर मैं 298 केल्विन लेके चलता हूं या कोई भी फिक्स टेम्परेचर लेके चलता हूं तो pKw की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन pH और pOH बदल सकते हैं. फाइन, तो इसलिए जरा हम pH pOH का रिलेशन लिख लें. लिखिए, a solution in which the concentration of H plus is equal to the concentration of OH minus, comma, the pH will be equal to pH will be equal to POH. pH is equal to POH. Full stop. Such a solution is termed neutral. Such a solution is termed neutral. ठीक है, full stop. For pure water, the concentration of H plus and OH minus, for pure water, the concentration of H plus and OH minus will always be equal. Hence, pure water is always neutral. क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब अगला लिखिए. A solution in which the concentration of H plus is more than the concentration of OH minus. The concentration of H plus is more than the concentration of OH minus. The pH will be less than POH. देखो यहां पे नेगेटिव लॉग है. अगर मान लीजिए मेरे पास 10 raised to power -7 है और मेरे पास 10 raised to power -6 है, do you perfectly know that 10 raised to power -6 would be greater than 10 raised to power -7? अगर मैं इनका लॉग लूं तो लॉग लेने पर 10 raised to power -7 का लॉग आएगा -7, 10 raised to power -6 का लॉग आएगा -6. Now again -6 is greater than -7. लेकिन अगर मैं इनका नेगेटिव लॉग लूं तो नेगेटिव लॉग आएगा 7 और नेगेटिव लॉग आएगा 6 and 7 is greater than 6. तो अगर H plus concentration OH minus से ज्यादा है तो pH POH से कम है. Is that clear? ठीक है, so that is what we have as the pH and POH. Clear? अब इसमें आगे लिखिए. Such a solution is considered acidic.
such a solution is considered acidic. ठीक है, अब हम तीसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं. आई थिंक वो बहुत ऑब्वियस है, लिख लीजिए. A solution in which the concentration of OH minus is greater than the concentration of H plus, comma, pH will be greater than POH, and the solution will be considered basic. कोई कंफ्यूजन यहां पर? ये तीनों जो लाइनें लिखी हैं, तीनों जो पॉइंट्स लिखे हैं, इनको एक बार बहुत ढंग से पढ़ लीजिए और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. क्लियर? तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, देखिए. क्वेश्चन इज KW. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, KW मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो आई डोंट हैव टू से KW ऑफ वाटर, तो आई विल सिंपली से KW. KW at 363 Kelvin is 10 raised to power minus 12. KW at 363 Kelvin is 10 raised to power minus 12. Calculate the pH of pure water at 363 Kelvin. Calculate the pH of pure water at 363 Kelvin. Is it acidic, basic, or neutral? I asked you to solve it, I didn't ask you to say it. लिख दो इसके आंसर. ज्यादा देर तो नहीं लगेगी ना, जितनी देर तुम्हें बोलने में लगी उतनी देर लिखने में लगेगी, राइट? आंसर देके तुम साथ वाले को कंफ्यूज कर देते हो. तुम्हारा फायदा नहीं होता, उसका नुकसान हो जाता है. आंसर कमाल है. अभी तो सारे के सारे बोले जा रहे थे, जब लिखने वो बोल दिया तो कोई लिख ही नहीं रहा. आपने एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल नहीं लिखा. क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर लिखो. सॉल्व करो भाई इसे. सारा सामने लिखा हुआ है, ऐसे ही करोगे.
हाँ भाई, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल नहीं लिखा आपने। इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट से आएगा। फर्स्ट पॉइंट सेज दैट इन केस ऑफ वाटर the concentration of H plus is always equal to concentration of OH minus. Word is pure water and this question also has pure water in it. ठीक है, तो प्योर वाटर के अंदर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, concentration of H plus is equal to concentration of OH minus. That means pH is equal to POH. ठीक है, Kw is equal to 10 raised to power minus 12. What is given to you? Use that. इसे चेंज नहीं करना, ठीक है। तो it means pKw is equal to 12. So 12 is equal to twice of pH, क्योंकि pH और pOH बराबर है, तो pH is equal to 6. Clear? pH is equal to 6. Now, if pH is equal to 6, then pOH also is equal to 6. और क्योंकि pH और pOH बराबर हैं, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट में भी एक सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ है, प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई ये बात? ओके, चलिए अब नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। इसमें कुछ पूछना है? अब हम ये देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम पर क्या असर पड़ता है अगर हम इसमें एसिड या बेस डाल दें। व्हाट विल हैपन देन? ये हमारे पास इक्वेशन है वाटर की, और हम इसमें HCl डाल देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। इतना HCl डालते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर बन जाती है, इट बिकम्स 0.1 मोलर। ठीक है, तो हमारे पास HCl है एक्वस। HCl in water is a strong electrolyte. It completely dissociates. So it is going to dissociate, और मैं यहां पे सिंगल एरो लगाऊंगा, डबल साइडेड एरो नहीं लगाऊंगा, and it becomes H plus aqueous plus Cl minus aqueous. ठीक है, ओके। हमने HCl डाला 0.1 मोलर, तो 0.1 मोलर HCl अगर मैं डालता हूं तो जो H plus की कंसंट्रेशन बन जाएगी, that also will be 0.1 मोलर, and Cl minus also will become 0.1 molar. Any confusions? अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, जब मैंने पानी में HCl डाला तो मैंने उसमें H plus डाल दिया। By the decomposition of water or ionization of water, H plus is the product of its ionization. H plus is the product of its ionization. अगर किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में उसका प्रोडक्ट डाल दिया जाए, then the reaction will shift in the backward direction. Or backward direction would mean that water will ionize less. Is that clear? किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर उस रिएक्शन का प्रोडक्ट डाल दिया जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है,
यहां पर हमने HCl डालकर H प्लस डाल दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वाटर की डिसोसिएशन कम हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि HCl डालने की वजह से वाटर की डिसोसिएशन कम हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूं जो कि स्ट्रांग है और उसका एक आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के प्रोडक्ट के सिमिलर है, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को ब्लॉक कर देगा, सप्रेस कर देगा। ठीक है, समझ आया? ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन सप्रेस हो रही है ड्यू टू द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट which has one ion common to the dissociation product of the weak electrolyte is termed as common ion effect. ठीक है, लिखो डेफिनेशन। The suppression of the ionization of a weak electrolyte by the addition of a strong electrolyte which has one ion common to the dissociation product of the weak electrolyte is termed common ion effect. Clear? कोई प्रॉब्लम्स? ठीक है, तो यहां पे HCl ने वाटर के डिसोसिएशन को रिड्यूस कर दिया है। फाइन। अब मुझे ये तो पता है कि वाटर का डिसोसिएशन सप्रेस हो गया। अब ये मुझे पता है कि वाटर जो पहले at 298 केल्विन 10⁻⁻7 H प्लस दे रहा था, 10⁻⁻7 OH माइनस दे रहा था, अब वो नहीं देगा। ठीक है, चलो एक बात मानते हैं, मुझे नहीं पता ना क्या वैल्यू है। लेट अस से ये वैल्यू x है, मुझे नहीं पता कितनी है, x है। ठीक है, अब अगर I talk about the concentration of H plus in the solution, that will be equal to the concentration of H plus coming from HCl plus the concentration of H plus coming from H2O. ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है that the concentration of OH minus is simply the concentration of OH minus coming from water, क्योंकि HCl H2O नहीं दे रहा, वो OH नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, HCl is a strong monobasic acid. Strong monobasic acid. ठीक है, स्ट्रॉन्ग ये बताता है पूरा डिसोशिएट हो गया, मोनोबेसिक ये बताता है कि ये
1 H प्लस पर यूनिट देगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक है, इसलिए द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl becomes equal to the concentration of HCl। याद रखना, अगर ये डायबेसिक होता तो इट विल बिकम ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। जैसे अगर H2SO4 है तो ट्वाइस हो जाएगा। Am I clear? ठीक है, नाउ तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इसको अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो दिस बिकम्स द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस is equal to the concentration of H plus from HCl is concentration of HCl। ठीक है, plus the concentration which comes from water, let us say X। ठीक है, हम ये कह सकते हैं that the concentration of H plus is equal to 0.1 प्लस X। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात, द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज X। समझ आई बात? कोई दिक्कत? सर वो दोबारा बताना कैसे? क्या ये H प्लस और HCl बेटा, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। स्ट्रॉन्ग मतलब जितना HCl है पूरा डिसोसिएट हो गया। अब HCl एक H प्लस दे रहा है तो जितना HCl होगा H प्लस भी तो उतने ही होंगे। इज इट क्लियर? तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक सिंपल सा फैक्ट है, Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट 298 केल्विन। तो Kw is equal to 10 raised to power minus 14. The concentration of H plus is 0.1 plus X and concentration of OH minus is X. ठीक है, इतनी बात क्लियर? फाइन। नाउ अब मुझे नहीं पता ये x की वैल्यू कितनी है, और मुझे नहीं पता कि मैं इस x की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आई डोंट नो। ठीक है, जब भी तुम्हें ये डाउट हो ना कि ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट कर दो और फिर आंसर निकालो। सोचो क्या ये आंसर ठीक है? देखो, हमें डाउट रहता है आमतौर से, अगर 1-2% वैल्यू है, टिल 1-2% वैल्यू ऑफ एक्स हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ता है कि क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दे रखी है वो कितनी नियर अबाउट है। अगर उन ऑप्शन के अंदर 10-20% से ज्यादा का डिफरेंस है, कर दो नेग्लेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर मे बी नॉट करेक्ट बट नियरली करेक्ट तो होगा, ऑप्शन में मार्क हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शंस काफी क्लोज हैं फिर नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पर हम कैसे कर रहे हैं नेग्लेक्ट? चलो एक बार नेग्लेक्ट कर लो। नेग्लेक्ट करोगे, ये वाला एक्स नेग्लेक्ट नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन में नेग्लेक्ट होता नहीं है, एडिशन वाला होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 10 raised to power minus 14 is equal to 0.1 x, और x की वैल्यू आ जाएगी 10 raised to power minus 13। अब देखो, x की वैल्यू एक्चुअली स्पीकिंग 10 raised to power minus 13 से भी थोड़ी सी कम है। ठीक है, और ये है 0.1। 0.1 और 10 raised to power minus 13 का रिलेशन इज 1:10 raised to power 12। That is 1 in 1,000 billion। यार कितने 9 लगाओगे?
कितने जीरो लगाओगे? छोड़ो परे. So this x becomes negligible and in fact zero in comparison to 0.1. ठीक है? So I can say for this example, ये जो सामने example लिखा हुआ है, the concentration of H plus is equal to the concentration of H plus given by HCl, which is equal to the concentration of HCl, which is equal to 0.1. ठीक है? Is it clear? तो अब अगर मैं pH निकालता हूं, तो pH is equal to minus log of the concentration of H plus, which is equal to minus log of the concentration of H plus from HCl, which is equal to minus log of concentration of HCl, which is equal to minus log 0.1, which is equal to minus log 10 raised to power minus 1, which is equal to minus of minus 1 is equal to 1. देखो मैं ये सारी चीजें सिर्फ एक वजह से लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम कहां कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं हर स्टेप बहुत आराम से लिख रहा हूं. पूरा ध्यान से देख लेना इसको. और अगर तुम चाहो तो जो मैं बोल रहा हूं वो भी साथ साथ लिख लो कि ये इसलिए हो गया, ये इसलिए हो गया, ये इसलिए हो गया. ठीक है? और अगर अभी नहीं लिखा जा रहा तो लुक एट द रिकॉर्डिंग वंस अगेन, और जो पॉइंट्स लिखने हैं लिख लेना. क्लियर? फाइन. अब एक काम करो, मैंने यहां पे 0.1 मोलर HCl लिया था ना, पूरा करो, बट इंस्टेड ऑफ HCl टेक NaOH. शुरू हो जाओ. इंस्टेड ऑफ HCl टेक NaOH. हाँ, 0.1 मोलर NaOH. मुझे नहीं पता तुम क्या निकालोगे, निकालो लेकिन. एंड आई विल सजेस्ट यू डू ईच स्टेप. मुझे पता तुम शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे, बट प्लीज डोंट डू इट फॉर वन क्वेश्चन. आगे मार लेना, इस क्वेश्चन में मत करो. सारे के सारे स्टेप्स लिख दो, ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया. डू इट फॉर NaOH. एक हिंट है, जैसे आप यहां पे H प्लस के लिए चले हो, NaOH में यू विल स्टार्ट विद OH माइनस.
सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। बेटा कितना सेम आएगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहां आपके पास आया POH इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ यू नो 14 इज इक्वल टू PH प्लस POH, दैट मीन्स 14 is equal to pH plus 1, that means pH is equal to 13। ठीक है, याद रखना एक बेस के लिए POH निकलता है और POH निकालकर उसे 14 में से सब्ट्रैक्ट करके pH निकालते हैं। मेथड वो ही सेम है, बस फर्क इतना है, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? कैसे निकालोगे? निकाल लो, मुझे दिक्कत नहीं है। ये पूरा मेथड ये कभी आप नहीं करोगे, ये कभी नहीं करोगे, इतना लंबा मेथड कौन करता है यार। लेकिन ये सारा मेथड आपके दिमाग में चलना चाहिए, लिखने के लिए नहीं, यहां पे होना चाहिए ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों आया, हर चीज दिमाग में होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। निकाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये भी तो दिमाग में चलना चाहिए ना। ये पूरा पोर्शन तो तुमने निकाला ही है, यहां तक निकालो। इज इट क्लियर? ओके, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखो। What is the pH of what is the pH of 0.01 molar? What is the pH of 0.01 molar HCl? लिख दो आंसर, मुझे आंसर चाहिए। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो लिख दो, अगर आपको ऐसे करना है ऐसे कर लो, योर विश।
देखो पूरे सिस्टम में जो पूरा किया है उसका पर्पस ये था कि तुम H+ कंसंट्रेशन निकाल सको। अगर तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये पूरा करना है तुम्हारी मर्जी। क्लियर? क्या आंसर है? 2, 12 नहीं 2। HCl है, H+ ही आएगा, pH ही निकलेगा। अगर 0.01 मोलर NaOH है तो 12। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। 1 मिलीलीटर 0.1 मोलर 1 मिलीलीटर 0.1 molar HCl is added to 999 milliliter water. Is added to 999 milliliter water. ठीक है? Calculate the pH of the final solution. Calculate the pH of the final solution if the temperature is 298 Kelvin. Kw 10⁻⁻14. (10⁻⁻4) नहीं 14. सॉल्व करो भाई साहब, गलत हो गया। क्वेश्चन पढ़ो पहले। HCl की कंसंट्रेशन पानी में डालने के बाद 10⁻⁻1 नहीं रहेगी, कंसंट्रेशन वुड चेंज। पहले HCl की कंसंट्रेशन निकालो, उसके बाद सॉल्व करना। M1V1 प्लस M2V2 नहीं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बस बंद कर दे, चल ठीक है बंद बैठा, कर। भाई साहब 1 मिलीलीटर एसिड अगर 999 मिलीलीटर पानी में डालोगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या 999 रहेगी या 1000 हो जाएगी? आपने 0.1 मोलर HCl को 1/1000 लीटर वाटर में डाला। This would be equal to the final concentration M2 into final volume, that is 1000 milliliter by 1000. तो M2 की वैल्यू आई 10⁻⁻⁻4। ठीक है, so the H+ from HCl is equal to 10⁻⁻4. Is it clear? ठीक है, now you have to check कि तुम 10⁻⁻4 के कंपैरिजन में वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट कर सकते हो या नहीं। अब अगर यहां पे इसी तरीके से तुम x की वैल्यू निकालोगे तो you will get the H+ from water
is equal to 10 raised to power minus 10. Now this is 1 in a million. I think we can neglect it. तो यहां पे pH is equal to, clear, pH will be equal to 4. कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब एक काम करो, HCl की जगह NaOH लो और आंसर दो. द आंसर इज 10. कोई दिक्कत? ठीक है, अब POH 4 आ जाएगा ना, तो pH 10 आ जाएगा. ये जो भी बोर्ड पे लिखा है इसमें कुछ पूछना है? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दूं. Calculate the pH of completely dissociated. Calculate the pH of completely dissociated (0.0005 molar H2SO4 at 298 Kelvin. Log 5 is equal to 0.699. Solve it. And write the answer, don't speak it. क्या हुआ? पिछले क्वेश्चन हुए तुमसे? हाँ, तो यहाँ पे समझ नहीं आया आगे. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10⁻⁻⁴ हो गया ना, तब इसका नेगेटिव लॉग ले लो. ठीक है, लॉग लोगे तो -4 आ जाएगा, क्योंकि पावर ऑफ 10 इज द लॉग. ठीक है, करो. मैंने बोलने से मना किया. भाई साहब क्वेश्चन करना था. कब? कर भाई. क्यों? कहाँ गड़बड़ हुई है? पीएच क्या होता है समझ में आया? क्यों कोशिश कर रहा है? सॉल्व कर. पिछले क्वेश्चन हुए हैं? हुआ वो? उसके बाद क्यों नहीं हुआ? किसमें प्रॉब्लम आई? लॉग नहीं निकालना आता तो लॉग निकालने की जरूरत क्या है? 10 का पावर बना और जो पावर है उसका साइन हटा के लिख दे.
क्या दिक्कत है लॉग निकालने में? 10 की पावर ही तो है लॉग। 10 की 0.01 का लॉग पावर में नहीं लिख सकता क्या? 0.01 पावर में लिख, कितना आएगा? हाँ, 1 to the power -2 या 10 to the power -2? तो लॉग लेगा तो क्या वैल्यू आएगी? -2। नेगेटिव लेगा तो क्या आएगा? प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ? अब पता था, अब आता है, सॉल्व कर। और अगर तुम यहां पे नहीं कर पाओगे तो तुम करोगे कब? कब करोगे? एक और ट्यूशन लगाओगे क्या ये सीखने के लिए? फिर मतलब ये कभी करोगे ही नहीं? पूछा क्यों नहीं? मैं काट लेता क्या तुम्हें? फिर अबे काट भी लेता तो 14 इंजेक्शन लगवा लेता, दिक्कत क्या है? वो अलग बात है, मौका नहीं मिलता उसका, पहले मर जाते। चलो सॉल्व करो। तीन आया आंसर। आने दे, मैंने बोलने के लिए कब कहा? मुबारक को आ गया तो। एक आदमी ने सुबह सुबह अपने घर का दरवाजा खोला, ठीक है? सामने एक केले का छिलका पड़ा हुआ था। तो उस आदमी ने सर पे हाथ मारा और बोला, ओहो आज फिर फिसलना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया? नहीं ना? नहीं है ना, बिल्कुल इलॉजिकल चीज है ना। अबे केले का छिलका पड़ा है तो उसमें फिसलना जरूरी है क्या? छोड़ आगे बढ़, है ना? तो अगर एक क्वेश्चन में एक डेटा दे रखा है तो ये किसने कहा कि यूज करना जरूरी है? यहां log 5 की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात देखो, क्या हुआ? जो कब समझ में आया क्या? जली तो कम से कम, यहां तो ज्यादातर फ्यूज ट्यूबलाइट्स हैं। यहां पर कंसंट्रेट ये सल्फ्यूरिक एसिड है और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है कंप्लीटली डिसोशिएटेड एसिड, ठीक है? और यहां पे भी सिंगल एरो दे रखा है। तो यू आर नॉट टू कंसर्न विद कि होगा डिसोशिएट नहीं होगा, कहा गया क्वेश्चन में कि होगा। तो नाउ इट डिसोशिएट्स और इससे बनेगा H प्लस कंसंट्रेशन 0.001, ठीक है? फाइन। अब करना क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम H2SO4 इज इक्वल टू 0.001। H2SO4 एक डाइबेसिक एसिड है तो वो 2 H प्लस दे रहा है, बोला था ना? ट्वाइस हो गया। फाइन। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम H2O विल बी इक्वल टू 10⁻⁻11। I think we can neglect it. So pH is equal to negative log of concentration of H plus from H2SO4, that is equal to minus log 10⁻⁻3, that is equal to minus of -3, that is equal to 3. So pH of this solution is 3. कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए। लिखो
अभी टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट है। लिखो, calculate the pH. Calculate the pH if 185 milligram calcium hydroxide molar mass 74 and 200 milligram sodium hydroxide are dissolved in 1 liter aqueous solution at 298 Kelvin. Are dissolved in 1 liter aqueous solution. भाई साहब ये इधर ये 1 लीटर aqueous solution बस। और क्या क्वेश्चन कहां झांक रहे हो, और उसमें है क्या क्वेश्चन में? दिस प्लस दिस in 1 liter aqueous solution. You need to find the pH at 298 Kelvin. Solve it. बोलने के लिए कहा था। अगली बार कोई आंसर बोला तो मैं कान पकड़ के यहां लेकर आऊंगा और उठक बैठक लगवाऊंगा उससे। सॉल्व करो, चुपचाप बैठो, जब मैं पूछूं तब बताना। क्या कर रहा है? नहीं करना। ये 37 से खत्म हो गया क्वेश्चन। सॉल्व क्या कर रहा है? इस क्वेश्चन में पहले आपको निकालना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने हैं, फिर आपको OH माइनस के मोल्स निकालकर ऐड करना है। उससे आपको मिलेगा टोटल मोल्स ऑफ OH माइनस, उससे कंसंट्रेशन निकलेगी। ठीक है? आई डोंट डिनाई इट्स दैट इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन। यस, इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई डोंट सपोज यू शुड नॉट बी एबल टू डू इट। हमारे पास 185 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि 185 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज देयर। ठीक है? द नंबर ऑफ मोल्स इज 185 डिवाइड बाय 74। जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है OH माइनस उसका डबल है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक डाई एसिडिक बेस है। ठीक है?
This is the concentration of OH minus from calcium hydroxide. ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का 200 मिलीग्राम है, ये इसका नंबर ऑफ मोल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक OH है, तो नंबर ऑफ OH from this amount is into 1. Now this becomes total moles of OH minus. Fine. Total volume 1 liter. This becomes the concentration of OH minus from these two. Solve करें। Clear? Okay, fine. The concentration of OH minus from these bases is 10 raised to power minus 2. From water would be 10 raised to power minus 12. Negligible. छोड़ दे, छोड़ दिया, and now we get POH is equal to 2. समझ आया? हो गया टिप? You are waiting for me to do this question? यहां पे लिख ले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वरना जब करेगा तो भूल जाएगा। भाई साहब इनके साथ नोट्स लिखो, हर चीज के साथ नोट लिखो। ये 185/74 क्यों किया है, 10⁻³ क्यों किया है, राइट इट। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन दे दूं, लिखो। 1 milliliter of 10 raised to power minus 5 molar 1 milliliter of 10 raised to power minus 5 molar HCl is added to 999 milliliter water. Calculate the pH of the resultant solution at 298 Kelvin. Log 1.1 should be nearly 0, maybe 0.01. हो सकता है। और मैं तुम्हें यहाँ पे पकड़ के ले आता हूँ उठा बैठा करवाने के लिए। ओके, आंसर आ गया? चलो मैं तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान कर देता हूं। 10⁻⁻5 into 1 is equal to
m into 1000. So the concentration of HCl is equal to 10 raised to power minus 8 molar. ठीक है, तो अब pH निकालो. Do it. Do it. क्या सुधरोगे नहीं ना? अब सुनो, तुम गलती करते हो और जानबूझ के करते हो. The concentration of H plus from HCl is equal to 10 raised to power minus 8. Is it okay? The concentration of H plus from H2O, अगर मैं neglect करता हूं, will turn out to be 10 raised to power minus 6. You cannot neglect 10 raised to power minus 6 in comparison to 10 raised to power minus 8. आप 1 रुपए के कंपैरिजन में 100 रुपए को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. समझ आई बात? हर क्वेश्चन में जो भी कर रहा था उस सब में मैं H प्लस फ्रॉम वाटर निकाल रहा था और कंपेयर करके बता रहा था कि ये नेग्लिजिबल है. तुमने ध्यान ही नहीं दिया. मुबारक हो. यहां पर इस H2O के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. आइडियली दिस शुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच शुड बी सॉल्व्ड. X की वैल्यू निकालनी चाहिए, but quadratic mathematics is not the part of chemistry. We know that the value will be between 6 and 7. किसी भी एसिड का pH, whatever be the dilution, at 298 Kelvin cannot be more than 7. और किसी भी बेस का pH cannot be less than 7. So here the value is nearly 6.97. ऐसे क्वेश्चन में जो भी वैल्यू 6.9 और 7 के बीच में मार्क कर दो, सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है. अगर मैं इससे भी डाइल्यूट कर दूं, 10 माइनस 8 की जगह 10 माइनस 10 कर दूं, तो इट इज बेटर टू राइट 7, क्योंकि इधर वाटर का कंट्रीब्यूशन एसिड के कंट्रीब्यूशन से कहीं ज्यादा है. इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? सो विद दैट वी हैव जस्ट फिनिश्ड ऑफ with the concept of pH.